Hello students, my name is Hiral Lotia from JP English Medium School. How are you all? I hope so you all are fine and doing good, right? Now kids, here we completed chapter number 1. हम लोगों ने chapter number 1 complete कर लिया, right? So in today's session, I'm going to introduce you chapter number 2. The name of the chapter number 2 is Adaptations in Animals. But before I start the explanation regarding this chapter, let me introduce the vocabulary words and meaning of this chapter. So it is easy to understand all the chapter's hard words, right? आपके मीनिंग्स और वोकेबुलरी वर्ड्स एक बार अच्छी तरह से आ जाएंगे तो बाकी की कोई भी चीज होगी वो आपको समझने में इजी रहेगी. Okay, so let's begin vocabulary words. We are going to pronounce each and every vocabulary word for the 5 times. How many times, kids? 5 times. So let's begin. Number 1, habitat. H-A-B-I-T-A-T, habitat. H-A-B-I-T-A-T, habitat. H-A-B-I-T-A-T, habitat. H-A-B-I-T-A-T, habitat. H-A-B-I-T-A-T, habitat. Now kids, what is the meaning of habitat? There are so many animals out there, right? They have a different हैबिटेट्स. उन लोगों की सारी डिफरेंट हैबिटेट्स होती है. उनकी हैबिटेट्स को देखते हुए वी हैव डिफरेंशिएट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, अर्बोरियल, एम्फीबियंस, लाइक सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन डिफरेंट कैटेगरीज कि उसकी हैबिटेट को देखते हुए हम लोगों ने उसको अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. क्लियर? I hope so you understand the meaning of habitat. Now, number 2, hibernation. H-I-B-E-R-N-A-T-I-O-N, hibernation. H-I-B-E-R-T-I-O-N, hibernation. H-I-B-E-R-N-A-T-I-O-N, hibernation. H-I-B-E-R-N-A-T-I-O-N, hibernation. H-I-B-E-R-N-A-T-I-O-N, hibernation. Kids, ये तो आपके लिए totally new word है, right? Hibernation. मतलब what is the meaning of hibernation? Hibernation is a kind of a sleep-like state in which some animals spend the winter. मतलब ऐसे animals होते हैं जो winter season में वो ठंडी को bear नहीं कर पाते हैं. मतलब कि वो season उसके लिए comfortable नहीं होती है. तो वो लोग क्या करते हैं? मतलब वो सोते रहते हैं. मतलब full on winter सीजन में वो सोते ही रहते हैं. मतलब एक स्लीप वाले स्टेज में चले जाते हैं. कौन सा स्टेज में? स्लीप वाले स्टेज में चले जाते हैं. तो मतलब थ्रू आउट द विंटर सीजन दे आर लाइक स्लीपिंग एंड स्लीपिंग. क्लियर? नाउ नंबर 3, aquatic. A-Q-U-A-T-I-C, aquatic. A-Q-U-A-T-I-C, aquatic. A-Q-U-A-T-I-C, aquatic. A-Q-U-A-T-I-C, aquatic. A-Q-U-A-T-I-C, aquatic. ये सबको पता है aquatic animals होते हैं, right? Aquatic animals कौन से होते हैं? Fishes होती है, whales होती है, dolphins होती है, कुछ बहुत सारे aquatic animals होते हैं, right? जो पानी के अंदर animals रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? Aquatic animals. Clear? Now next. Number 4, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. T-E-R-R-E-S-T-R-I-A-L, terrestrial. Now what is the meaning of terrestrial? Terrestrial is a kind of animals कि हम लोगों ने उसकी हैबिटेट को देख के terrestrial animals को अलग कर दिया. तो कौन से हैबिटेट्स को देख के हम लोगों ने terrestrial animals को डिफरेंशिएट कर दिया? तो कि terrestrial animals usually have legs to move on land. मतलब terrestrial animals के पास लैंड में वॉक करने के लिए legs होते हैं, right? मतलब कि animals that live on land are called animals or terrestrial animals. लैंड एनिमल्स भी उसको बोल सकते हो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोल सकते हैं. जो एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर वॉक करते हैं, उस एनिमल्स को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. द अदर नेम ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल इज लैंड एनिमल्स. क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 5, एम्फीबियंस.
amphibians, amphibians. amphibians, amphibians. amphibians, amphibians. amphibians, amphibians. amphibians, amphibians. This video is also new for you kids, right? What is the meaning of amphibians? मतलब animals that can live on land as well as in water are called amphibians. ऐसे animals जो land में भी रहते और water के अंदर भी रह सकते हैं, तो उस types के animals को क्या बोलेंगे? Amphibians. Best example of amphibians is toad. Toad पता है ना, frog जैसा होता है, वो पानी में भी रहता है और लैंड के ऊपर भी रहता है. देन क्रोकोडाइल्स, वो भी पानी में रह सकती है, बाहर भी रह सकती है. These are the examples of amphibians. Clear? Now next, aestivation. aestivation, aestivation. aestivation, aestivation. aestivation, aestivation. estimation. किड्स ये चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, राइट? जैसे कि हम लोगों ने कभी ऐसे वर्ड्स सुने ही नहीं होंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन? मतलब prolonged torpor or dormancy of an insect, fish or amphibian during a hot or dry period. मतलब एक ऐसा लॉन्ग पीरियड होता है जैसे कि फिश में, एम्फीबियन में, कि वो एक ड्राई पीरियड होता है जिसके थ्रू उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टिवेशन. क्या बोलते हैं किड्स? एस्टिवेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 7, अर्बोरियम. ARBOREAL, अर्बोरियम. ARBOREAL, अर्बोरियम. ARBOREAL, अर्बोरियम. ARBOREAL, अर्बोरियम. ARBOREAL, अर्बोरियम. ये भी न्यू है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बोरियम? मतलब लैंड एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियम. होते तो लैंड एनिमल्स, ये वो लैंड में वॉक करते, ये सब कुछ करते, बट दे आर मोस्टली लिविंग ऑन ट्रीज. कि वो रहते कहाँ पे? तो के ट्रीज के ऊपर रहते हैं, तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अर्बोरियम. ये ट्रीज का नाम सुनते आपको कौन सा एनिमल माइंड में आया किड्स? मंकी, राइट? मंकी मतलब कि जो कोई भी क्लाइंब अप करता है ट्रीज के ऊपर, मोस्टली ट्रीज के ऊपर रहता है, तो उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? अर्बोरियम. क्लियर किड्स? मतलब कोआला करके भी एक एनिमल है, KOALA. It's a one type of animal who lives on trees only, but है वो land animal. Clear? Now next, number 8, flightless. FLIGHTLESS, flightless. FLIGHTLESS, flightless. FLIGHTLESS, flightless. FLIGHTLESS, flightless. flightless. फ्लाइटलेस मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिसके पास विंग्स नहीं होते, सॉरी ऐसे मतलब ऐसे बर्ड्स होते हैं जिसके पास विंग्स नहीं होते, मतलब दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. बर्ड्स तो होते हैं बट उसके पास विंग्स नहीं होते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लाइटलेस बर्ड्स. क्या बोलेंगे किड्स? फ्लाइटलेस बर्ड. आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड. आपके दिमाग में कोई आ रहा है? Kids, ostrich is the best example of flightless bird. आपने कभी ostrich देखा है? नहीं देखा है? मतलब उसके पास feathers होते नहीं है, but है तो वो bird, तो उसको क्या बोलेंगे? Flightless bird. Clear? Now next, number 9, carnivores. CARNIVORES, carnivores. CARNIVORES, carnivores. CARNIVORES, carnivores. CARNIVORES, carnivores. CARNIVORES, carnivores. Kids, I think
you know what is carnivores, which type of animals we are going to call it carnivores. हम सबको पता है carnivores कौन से types के animals को बोलते हैं, मतलब flesh eating animals are called carnivores. ऐसे animals जो दूसरे animals का flesh खाते हैं, सिर्फ flesh खाते हैं दूसरे animals का, उस types के animals को क्या बोलेंगे, carnivores animals. क्या बोलेंगे kids, carnivores. Clear? Now next, number 10, herbivores. Herbivores, herbivores. Herbivores, herbivores. Herbivores, herbivores. Herbivores, herbivores, herbivores. I think kids, you know what is the meaning of herbivores. सबको पता ही होगा herbivores का meaning क्या होता है, मतलब plant eating animals are called herbivores. ऐसे animals जो सिर्फ plants खाते हैं, green plants खाते हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उस टाइप के animals को हम क्या बोलेंगे, plant eating animals, मतलब herbivores animals. Clear? Now next, number 11, scavengers. Scavengers, 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 scavengers. This word is also new for you kids. Scavengers मतलब animals that feed on the flesh of dead animals are called scavengers. मतलब मोस्टली कैसा होता है कि एनिमल्स एक दूसरे एनिमल्स को फ्लैश खाने के लिए उसको मारता है, उसको पकड़ के मार देता है, राइट? तो ऐसा होता है. बट ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स होते हैं ना, उसकी डेड बॉडी कहीं पे भी गिरी हुई होती है, जंगल में होता है ना, मतलब तो वो मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मतलब डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स. येना एंड वल्चर्स भी डेड एनिमल्स का फ्लैश खाती है, दैट्स व्हाई उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स. इवन येना करके भी एक एनिमल है, वो भी डेड एनिमल्स का फ्लैश खाता है, तो दे आर कंसीडर्ड एज अ स्कैवेंजर्स. क्लियर? Now next, number 13, camouflage. camouflage, camouflage. camouflage, camouflage. camouflage, camouflage. 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 Camouflage is a kind of a thing, मतलब the way in which an animal's color or shape matches its surrounding and makes it difficult to see. Kids, ऐसे animals होते हैं कि बट नेचुरली एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, मतलब खाने के लिए. तो ये जो होते हैं ना कैमोफ्लेज टाइप्स के एनिमल्स, वो क्या करते हैं कि वो सपोज ट्री के ऊपर होते हैं ना, लीव्स के ऊपर, तो वो उसका कलर कैसा कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं, और उसका शेप भी थोड़ा बहुत इस टाइप का कर देते हैं. इसका मतलब कि उसको जो मारने वाला होता है ना, वो उसको मार ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको मिलता ही नहीं. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड देम इन ग्रीन लीव्स, राइट? उसको फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, उस वजह से वो बच जाता है. मतलब यहाँ पे सपोज आता है ब्लैक कलर है, तो वो ट्राई करेगा कि उसका कलर भी ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक कलर में तो ब्लैक कलर का इजीली आइडेंटिफाई नहीं होगा, राइट? This is the thing. So, no, I hope so you understand the meaning of camouflage. Clear? Now, next, number 13, flesh. F-L-E-S-H, flesh. F-L-E-S-H, flesh. F-L-E-S-H, flesh. F-L-E-S-H, flesh. F-L-E-S-H, flesh. मतलब एनिमल्स का जो ऊपर का लेयर होता है ना, स्किन वाला, स्किन के नीचे का, ये जो अपने गुजराती में कहे ना मांस, तो एनिमल्स का जो वो वाला लेयर होता है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं किड्स, फ्लैश बोलते हैं. क्या बोलते हैं किड्स, फ्लैश. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 14, omnivores. O-M-N-I-V-O-R-E-S, omnivores. O-M-N-I-V-O-R-E-S, omnivores. O-M-N-I-V-O-R-E-S, omnivores. O-M-N-I-V-O-R-E-S, omnivores. O-M-N-I-V-O-R-E-S, omnivores.
omnivores. Kids, both eating animals, मतलब वो green plants भी खाते हैं और दूसरे animals को मार के भी खाते हैं. तो ये दोनों चीज जब खाते हैं तो उस टाइप के animals को क्या बोलेंगे? Omnivores. जैसे कि crow, we human beings. These are the bears are the examples of omnivores. कि वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स के भी वो जिंदा रह सकते हैं. उसको दोनों चीजें अच्छी लगती है, वो दोनों खाते हैं. तो उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलेंगे किड्स? Omnivores. Clear? Now next, number 15, parasites. 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 Now kids, parasites live inside or on the body of the other living organism. Parasite ऐसे animals है या तो inside live inside मतलब कि बॉडी के अंदर भी होते हैं parasites और मतलब कि organisms की बॉडी के ऊपर होते हैं. आपको पता है ना बेड बग करके बग होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट. The organism in which parasites live is called the host. Parasites take food from the host and also harm them. Bed bugs, lice and fleas. Lice पता है ना kids? झूठ. तो उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं? Parasites. Flies है मतलब मच्छर जो है ये तो बॉडी के अंदर भी रहता है और बॉडी के बाहर भी पाया जाता है. Sometimes it is danger also. Right? Clear? I hope so you understand all the vocabulary words. Now let's read it one time and let's pronounce it one time. Okay? Number 1, habitat. 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 Number 2, hibernation. 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 Number 3, aquatic. 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 Number 4, terrestrial. 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 Number 5, amphibians. 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 Number 6, estivation. Aestivation. Estivation. Number 7, arboreal. 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 Number 8, flightless. 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 Number 9, carnivores. 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 Number 10, herbivores. 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 Number 11, scavengers. 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 Number 12, camouflage. 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 Number 13, flash. Flash. Number 14, omnivores. 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 Number 15, parasites. Parasites. Clear kids? Here we completed our vocabulary words. Now let's begin meanings. Meaning number 1, hibernation. A sleep-like state in which some animals spend the winter. ऐसे एनिमल्स जो अपनी विंटर सीजन में पूरे के पूरे सोते सोते ही अपनी सीजन को बिता देते हैं, उस टाइप्स के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? हिबरनेशन. क्लियर? नाउ नंबर 2, एस्टिवेशन. जैसे कि prolonged torpor or dormancy of an insect, fish or amphibian during a hot or dry period. मतलब उस टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसको एक लॉन्ग पीरियड में ड्राइनेस हो जाती है, मतलब एक चेंज फाइंड किया जाता है, जैसे कि फिश में, इंसेक्ट्स में, लाइक मोस्टली एम्फीबियंस. तो दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एस्टिवेशन. क्लियर? नंबर 3, अर्बोरियल. अर्बोरियल मतलब कि ऐसे एनिमल्स लिविंग इन ट्रीज, मतलब है तो लैंड एनिमल्स पर मोस्टली वो कहाँ पर रहना प्रीफर करते हैं? ट्रीज के ऊपर ही. तो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? अर्बोरियल एनिमल्स. नाउ नंबर 4, camouflage. The way in which an animal's color or shape matches its surroundings and makes it difficult to see. मतलब ऐसे एनिमल्स कि वो अपने आप को हाइड कर देते
कैसे हाइड कर देते हैं, मतलब कि वो जहाँ पे होते हैं उसकी सराउंडिंग जैसा उसके साइज और सॉरी कलर और शेप ऐसा अडॉप्ट कर लेते हैं कि कोई भी दूसरा एनिमल उसको इजीली फाइंड नहीं कर पाता है। क्लियर? नाउ नंबर 5, स्कैवेंजर्स। Animals that feed on the flesh of dead animals are called scavengers। मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडी होती है उसका फ्लैश खा लेते हैं, तो उस टाइप के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर्स। क्या बोलेंगे किड्स? स्कैवेंजर्स। क्लियर किड्स? नाउ लेट्स रीड these all the meanings one time, okay? Number 1, hibernation. A sleep-like state in which some animals spend the winter. Number 2, estivation. Prolonged torpor or a dormancy of an insect, fish or amphibian during a hot or dry period. Number 3, arboreal, living in trees. Number 4, camouflage. The way in which an animal's color or shape matches its surrounding and makes it difficult to see. Number 5, scavengers. Animals that feed on the flesh of dead animals are called scavengers. Clear kids? I hope so you understand vocabulary and meanings of these chapter. ये थोड़ा सा चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको vocabulary वर्ड्स और मीनिंग्स आ जाएंगे ना, तो फिर आपके पास डिफिकल्टी आएगी नहीं। ऐसा हो तो ट्राई टू रीड द होल चैप्टर, उसमें से आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे। ट्राई टू फाइंड मीनिंग्स इन योर ऑक्सफोर्ड बुक। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है ना, न्यू मीनिंग्स जो है वो फाइंड करो, उससे आपकी बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी हैबिट्स आ जाएगी। रीड करोगे, मीनिंग्स पता चलेंगे, आपकी इंग्लिश improve होगी। So there are so many things you can improve by reading Oxford meaning book. Okay kids? Now kids, I have shared a PDF with you। मैंने आपके साथ PDF शेयर किया ना vocabulary words और meanings की, वो आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करनी है। जैसा दीदी ने प्रेजेंटेशन किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको भी प्रेजेंटेशन करना है विद गुड हैंडराइटिंग। वोकैबुलरी वर्ड्स है उसको एक लाइन स्किप करके लिखना है, राइट? डू इट विथ गुड हैंडराइटिंग प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ओके? बिकॉज आपकी बुक्स चेकिंग के लिए आएगी तो अच्छी राइटिंग होगी तो मुझे चेकिंग के लिए इजी रहेगा, बाकी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके नाउ किड्स, ये तो था हमारा सेशन नंबर 1। आपको पता है मैं सेशन नंबर 2 में क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ? मैं आपको सेशन नंबर 2 में हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन, कौन से एनिमल्स की कौन सी हैबिटेट्स है और उसकी उस हैबिटेट्स के एनिमल्स की कौन कौन सी उन्होंने एडेप्टेशंस एडप्ट की है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। फिर है एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स को भी मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, फीचर्स, जो कुछ भी है वो भी मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। फिर है एरियल एनिमल्स, उड़ने वाले एनिमल्स, उसको भी डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। फिर है अर्बोरियल एनिमल्स, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिर आता है एडेप्टेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, मतलब ईटिंग हैबिट्स को देख के उसकी एडेप्टेशंस होती है, राइट? कि ईटिंग हैबिट्स को लेके जैसे कि हमने बोला हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स, तो इन सब की ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए हमने उसको डिफरेंट कर दिया है। फिर लास्ट वाला हमारा टॉपिक होगा एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस एनिमल ने क्या एडेप्ट किया। जैसे कि मैंने बोला कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स की भी बैकग्राउंड होता है उसका बैकग्राउंड को अपने आप में ले लेते हैं उसको अपने आप को हाइड करने के लिए, तो वो क्या होता है उसने एडेप्टेशन की बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि कोई भी एनिमल उसके ऊपर अटैक कर पाए नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके किड्स, आई होप सो यू लाइक माय वीडियो, लाइक इट, इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट लाइक इट। सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।